Hello everyone, here I am again with my next video for the class 8th DAV board, and as you can guess from the screen, this very video is related to the book named English Literature. In this very video I am going to share with you the summary of the chapter number 12, and it is a play named A Bad Dream, written by Don Byron. Okay, in this very play, we have 5 main characters, and those characters are George Hill, who is the main character, who dreams this bad dream, and he is the manager of a bank. Then we have George's wife named Jane Hill. Then there is a cook named Annie. There are 2 employees from Mr. George Hill's bank, and the one is Mr. Briggs. He is the assistant manager of the bank. Second one is Mr. Winter, who is the cashier. Okay, so these are the 5 main characters of this very play. So now let us see the summary of the play. In the beginning, we come to know that a play is being written by Don Byron, and through this dream, the writer, the dramatist, he tells us about a dream which changes the attitude of Mr. Hill. This is Mr. Hill and this is Mrs. Hill. And that bad dream brings about a major transformation in his thinking. इस प्ले के द्वारा हमें बताया गया कैसे एक ड्रीम जो है एक व्यक्ति के एटीट्यूड को बदल देती है, उसकी सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। वो क्या बदलाव है? See, it was about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. Hill and Mrs. Hill, they have had their lunch and they were drinking coffee in the sitting room. Okay. Mr. and Mrs. Hill were having a conversation, and during that conversation, Mr. Hill said that it was a bad lunch. बात जब करते हैं लंच करने के बाद कॉफ़ी पीते पीते, तो मिस्टर हिल कहते हैं लंच के बारे में कि वो बहुत बुरा लंच था. द कॉफ़ी वॉज ऑल्सो टेरेबल. कॉफ़ी भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी. मिस्टर हिल wanted that they should sack Annie as she never cooked well. मिस्टर हिल चाहते थे कि वो एनी को जो नौकरी से निकाल दें, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं बनाती थी. ये सुनने के बाद मिसेस हिल जो है, शी आंसर्ड दैट एनी हैड बीन सर्विंग इन देयर हाउस फॉर द लास्ट 20 years. मिसेस एनी कहती कि जो कुक है एनी, वो उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही है. एंड शी वॉज टू ओल्ड, और वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, टू गेट ए न्यू जॉब. लेकिन मिस्टर हिल जो हैं, ही लिसन टू नथिंग and answered that she must speak to her and give her 3 months time to search for another job. मिस्टर हिल ने मिसेस हिल की बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि वो मिस एनी को जो है 3 महीने का मौका दे दें, टाइम दे दें, ताकि उस 3 महीने के दौरान वो अपनी नई जॉब ढूंढ सकें. और ये कहने के बाद जो है मिस्टर हिल जो अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करते हैं and he went to sleep. वो सो जाते हैं. and it was 2 o'clock, 2 बजे थे. और जब वो सो जाते तो क्या होता है, there was a knock at the door. दरवाजे पे जो है खटखटाहट होती है. और जब दरवाजे पे खटखटाहट होती तो क्या होता है, the assistant manager Mr. Brigg and Mr. Winter, they had come
to see Mr. Hill. अब इन दोनों को संडे का दिन था, दोपहर थी। मिस्टर हिल जो हैं वो देख के बहुत सरप्राइज होते कि मिस्टर ब्रिग्स और मिस्टर हिल संडे को मेरे घर करने क्या आए हैं। मिस्टर हिल asked them to sit. Mr. Briggs asked Mr. Hill when he was going to resign. मिस्टर जो ब्रिग्स हैं वो मिस्टर हिल से पूछते हैं कि वो कब रिज़ाइन करने वाले हैं। And Mr. Winter said that he did not behave properly with the bank employees. अब जब ये सुन के जब रिज़ाइन करने की बात आती है तो मिस्टर हिल जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, मिस्टर ब्रिग और मिस्टर विंटर ये दोनों जो हैं वो कहते हैं कि बैंक वालों की ऐसी शिकायत है कि आप जो है बैंक वालों के एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हो। एंड ऑल द बैंक एम्प्लॉयज़ वांटेड दैट he should resign. Mr. Hill said that he had been working with the bank for last 30 years. Mr. Hill ने ये सुनने के बाद कहा कि मैं तो जो बैंक में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। The employees also told that he did not work hard. Mr. Briggs और विंटर ने कहा कि जो कर्मचारी हैं बैंक के उन्होंने ये भी बताया कि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो। और भी शिकायतें की मिस्टर ब्रिग ने और मिस्टर हिल ने। जो एम्प्लॉयज़ ने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या था वो कि he used to come late in the morning and spend on lunch at least 2 to 3 hours, and they had written to the head office also, and they had agreed that Mr. Hill must resign. तो ये सब बातें कहने के बाद मिस्टर हिल बहुत गुस्सा होते, वो कहते हैं मैं रिज़ाइन क्यों करूं, इतने साल अब मुझे इस एज में कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँगा। तो मिस्टर ब्रिग और विंटर कहते कि बैंक वालों ने कहा आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस दौरान आप अपना काम नया ढूंढ सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद मिस्टर ब्रिग और मिस्टर हिल जो हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, मिस्टर हिल he is very much upset. He agrees, he thinks about what Mr. Winter and Mr. Briggs had said. When he was thinking at that time, उस समय क्या होता है, he saw Mrs. Hill. Mrs. Hill को देखता है वो, and she came and informed Mr. Hill that she was going to have a long holiday with her sister. अब ये सुनने के बाद मिस्टर हिल जो है और परेशान हो जाते हैं। वो चाहते थे कि मिसेस हिल जो है इस टाइम में उसकी मदद करे, उसको सपोर्ट करे, लेकिन वो उसको अकेला छोड़ के जाना चाहती है। तो वो कहते हैं ठीक है, कब वापस आओगी। तो मिसेस हिल कहती है जब तुम्हें जॉब नहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। ये कह के जो है मिसेस हिल भी जो है चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एनी आती है। दिस इज एनी, शी इज़ द कुक। शी केम एंड आस्क्ड फॉर टी टू मिस्टर हिल। फिर वो मिस्टर हिल से, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, चाय के लिए पूछती है। मिस्टर हिल टोल्ड एनी दैट ही हैड नो मनी टू पे हर। मिस्टर हिल कहते एनी को कि उसके पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए, और एनी भी जो है जाना चाहे तो जा सकती है। लेकिन जो कुक है वो एनी, वो कहती कि इट डिड नॉट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी वॉज नॉट वर्किंग फॉर मनी इन द हाउस, उन्हें घर में पैसे के लिए काम नहीं कर रही है और उसने काफ़ी सारा अपने फ्यूचर के लिए बचा रखा है। सो वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। अब जब एनी ऐसा कहती है तब क्या होता है, सून उसके बाद क्या होता है, मिस्टर हिल वोक अप। मिस्टर हिल जो है वो उठ जाते हैं अपने सपने से। मिसेस हिल केम इनसाइड, मिसेस हिल अंदर आती हैं। आप देख सकते हो दोबारा यहाँ पे मिसेस हिल बैठी हैं। एंड मिस्टर हिल वॉज सरप्राइज टू सी हर। मिस्टर हिल जो अपनी वाइफ को देख के बहुत सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम अपने सिस्टर के घर नहीं गई। तो मिसेस हिल कहती मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं हूँ, तुम इतनी दोपहर से सो रहे थे। तो मिस्टर हिल थॉट दैट इट वॉज अ ड्रीम।
Okay, he asked his wife. मिस्टर हिल ने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुमने एनी को जाने के लिए कह दिया है? तो मिसेस हिल कहती, ना, अभी मैंने नहीं कहा। तो मिस्टर हिल कहते कि हमें लगता थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, और एनी को इस उम्र में नई जॉब भी नहीं मिल सकती, ठीक है, तो हम ऐसा करते उसके लिए एनी के लिए एक असिस्टेंट रख लेते हैं और एनी को जॉब से नहीं निकालते। अब ये सुनने के बाद मिसेस हिल बहुत शॉक्ड होती हैं, खुश भी होती हैं, शॉक्ड भी होती हैं। तो काफ़ी बदला हुआ देखा अपने हस्बैंड को। फिर वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से कि ऐसा क्यों? तो मिस्टर हिल कहते हैं कि मेरे को अब एहसास हो गया कि एनी अब बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, उसको जॉब नई नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको अब जॉब में से नहीं निकालना, हम उसके लिए कोई हेल्पर रख देंगे। मिसेस हिल खुश हो जाती, तभी एनी आती चाय पूछने के लिए, लेकिन मिसेस हिल कहती थोड़ी देर बाद, और फिर एनी के जाने के बाद मिसेस हिल पूछती हैं, वॉज इट योर ड्रीम दैट चेंज यू? मिसेस हिल पूछती हैं मिस्टर हिल से, क्या वो तुम्हारा सपना था जिसके कारण तुम इतना बदल गए हो? तो मिस्टर हिल को जवाब नहीं देते, कहते उसके बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। और फिर नाउ द ड्रीम, दैट बैड ड्रीम had changed Mr. Hill a lot. He is a changed person now. Okay. Earlier he was very unrude, he was very insensitive person, but that dream had made him a kind person, a sensitive person, a person who has feelings for others, who cares for others. So that type of person is now Mr. Hill. Okay. So this was all about the summary of the chapter number 8 of the literature book. I hope आपको अभी इस चैप्टर की समरी जो समझ में आ गई होगी, और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो प्ले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके, so this was all from me for this very video. If you like the video, do like and share it, and do let me know through the comment section. Thanks for watching. I will be soon back. Till then, keep learning and stay safe.